bottom is hitting too many stop losses, if your top bottom is taking away all your profits, if your top bottom is giving you a lot of whipsaws, if the top bottom is giving you a lot of fake entries and fake exits, then it's time to stop top bottom right now. This video is all about why did I stopped using top bottom after using it for so long, and why you should stop it too. Hello and namaste everyone. I'm Asmita Patel and I have been trading markets for more than 16 years now. I'm a hardcore trend follower. My trend following journey started in 2011 with top and bottom. Top and bottom, buy above previous top and sell below previous bottom. कितना easy लगता है, right? कितना simple लगता है. ऐसे लगता है यार ये तो कितना simple हम कर ही लेंगे. And कितना objective लगता है. But do you know, top and bottom is a highly subjective strategy. After using it for a very, very long time and trying to make it work for several years, I ended up in a big mess and a big loss after using it for several years. And this forced me to take a bold decision of stopping top and bottom immediately. And this is where everything for me as a trader changed, because that forced me to make my own system. That forced me to develop my own system. And I'm so proud to say that, for last 8 years, I have been trading on my proprietary systems that I've developed. And for last few years, my team has been receiving a lot of calls. They have been receiving a lot of emails saying that, ma'am, I'm using top and bottom strategy, but I am not able to make money. मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ? मैम मैं टॉप बॉटम यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं जितना प्रॉफिट्स बनाता हूँ सब चला जाता है, फिर भी लास्ट में वो लॉस दे रहा है. मैम टॉप बॉटम मुझे बहुत अफसोस दे रहा है, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ? And this video is basically for them to help you understand that there is no problem with there's no problem with you. There is the problem with the top and bottom strategy. So top and bottom strategy has several few big flaws which does not allow it to work in your favor. The edge is not in your favor, and there are times, when you hit like 18, 20, 25 stop losses at one go. And that is what makes it really, really difficult for a trader to get and stay in the trade for a very, very long time. So in this video, we'll talk about all the flaws that that makes trend following, the top bottom trend following strategy difficult to make money. The number one problem that you'll face as soon as you start using the top bottom strategy is that, you get too many stop losses, especially in a sideways. I know now you must be thinking that her trend following strategy with sideways with thodi bahut stop losses do there. But, when it comes to top bottom, it's like more than, 10, 15, 20, 22, 25 stop losses at a stretch. Okay, and you still don't end up making money, and that's crazy. Now let's understand, why does that happen? Why does top bottom give you exorbitantly a lot of stop losses? Okay, let's go and check and let's understand where exactly the system or the entire top bottom process or the logic goes wrong. Now, the first mistake that you are doing is, जब आप सुनते हो कि buy above previous top, sell below previous bottom, and फिर आप ये strategy को close line graph में उसको check करते हो. तो जब आप close line graph में check करते हो तो आपको लगता है, अरे मैंने यहाँ buy किया, यहाँ sell किया, and then again यहाँ sell किया, यहाँ buy किया, फिर यहाँ sell किया, फिर यहाँ buy किया, right? एंड आपको अब ये जो क्लोज लाइन बेसिस पे आप जो स्टडी करते हो और चेक करते हो, और आपको लगता है कि यार बहुत अच्छा चल रहा है ये सिस्टम. ओके, एंड देन आई एम श्योर जब आप इसको ट्रेड करना शुरू करते हो, आपको जब भी वो सवाल आता है कि नहीं हाई लो में तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, राइट, फिर आप क्या करते हो कि आपको जो रिजल्ट आया उसमें से 25-30% निकाल देते हो.
आपको 25-30% आपको 75-80% निकालना होगा। आपको जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें से नॉट 25-30%, बिकॉज अगर आपको ये पैच में अगर आपको दिख रहा है कि 10-12 स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, अगर यही चीज आप हाई एंड लो डालोगी तो आपके 10-12 स्टॉप लॉस करीबन 17-18 स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे। ओके तो सबसे पहली चीज, आप टॉप बॉटम हो या कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी हो फॉर दैट मैटर, आप उसको क्लोज लाइन ग्राफ पे मत देखिए कि क्लोज लाइन ग्राफ में हर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा दिखता है। यू हैव टू लुक एट द हाई एंड लो, क्योंकि मार्केट क्लोज पे नहीं चलता है ना, मार्केट तो हाई लो पे चलता है। आपने प्राइस वहां डाला है और प्राइस उधर गया तो आपका बाय ट्रिगर हो गया, विच यू डोंट सी एट योर। एंड इन जनरल आप नॉर्मली सुनोगे कि आप बैक टेस्टिंग कीजिए क्लोज लाइन ग्राफ में, फिर जो आपको रिजल्ट्स है उसमें से आप 25-30% निकाल दीजिए, फिर आपको जो बचता है वो आपका ओरिजिनल प्रॉफिट है। नो इट इज नॉट, यू हैव टू एटलीस्ट टेक अवे 75-80% ऑफ इट। अब हम एक काम करते हैं, इसको मैं यहां से लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, व्हाट डू आई मीन बाय दैट। Let me take this here. Okay, everyone. Okay, and let's say properties. इसको हम कैंडलस्टिक कर देते हैं, सॉरी कैंडलस्टिक्स अप्लाई। ओके सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके अब आप बाय करोगे एज पर द रूल, आप कहां बाय करोगे? यू विल बाय अबव द प्रीवियस टॉप। तो मैं यहां पे 2 लाइन लेती हूं, लेट मी टेक अ ग्रीन and a red line. So let me take this green here to apply, okay, and let me take this red line here, okay, for a sell, to help you understand that it is sell trade here. Well, let's say आपने यहाँ पर close लिया, आपका buy trigger हुआ, okay, अब आपका यहाँ पे buy trigger हुआ, आपका sell trigger होगा यहाँ पे इस bottom पे। So now you see this here, तो अगर आप क्लोज देखोगे यहाँ पे है 1765.3, आपको क्लोज यहां देखना है। ओके क्लोज है यहाँ पे 1765.3 और यहां क्लोज है 1766। तो अगर आप क्लोज टू क्लोज कंपेयर करोगे तो आपको लगता है कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, जबकि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होके वो यहाँ पर ऑलरेडी वो सेल हो चुका है। ओके वो आपका सेल यहाँ पे आपका सेल हो चुका है यहाँ पर। सो दिस ये जो ट्रेड है आपका क्लोज में मिस हो गया, तो अब आपका यहाँ पे ट्रेड हुआ सेल। अब वो बाई कहां पे होगा? प्रीवियस टॉप पे होगा। अब आपका अगला ट्रेड जो है ना वो यहाँ पे बाय हो गया, ये प्रीवियस टॉप के ऊपर आपका बाय हो गया, राइट? नाउ व्हेन यू सी दिस बाय हियर, ओके ये बाय भी आपका मिस हो गया। ओके ये तीसरा ट्रेड हुआ। अगेन व्हेन यू सी दिस हियर, ओके अगेन व्हेन यू विल सी दिस हियर, ये बाय हुआ। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये यहां पर आपका फोर्थ ट्रेड हुआ शॉर्ट। ओके एंड देन वापस वो यहां पर आपको फिफ्थ ट्रेड देता है बाय। बाय, अब ये बाय का पोजीशन आपका ऑन था, ओके एंड वो वापस नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ। 6 स्टॉप लॉस, ये आपके 6 स्टॉप लॉस यहां पर हो गए। ओके 6 स्टॉप लॉसेस, एंड यही जब आप क्लोज लाइन में देखोगे तो आपको लगेगा मेरा एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, जबकि यहां पर टोटल 6 स्टॉप लॉसेस करीबन 1 2 3 4 5 6 7 डेज के अंदर आपकी टोटल 6 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। 6 फिर अब आप वापस फिर से आपका यहाँ पे बाय हुआ 7 बाय, ये आपका 7th बाय हुआ, फिर ये बाय पोजीशन ऑन है एंड फिर से आपका यहाँ पे गैप डाउन हुआ। तो बाय पोजीशन जो ऑन था वो भी मिस हुआ, मतलब उसका भी गैप डाउन हुआ, शॉर्ट एंट्री भी हो गई। फिर आप यहाँ पे कहीं पर आप शॉर्ट करोगे, ये आपका ट्रेड हुआ 8th, राइट? 8th अगेन टॉप। अब आप वापस यहाँ पे बाय कर दो, ये 8th स्टॉप लॉस हो गया आपका। ये बाय हुआ, बाय होने के बाद आपको दिख रहा है ये यहां पर आपका 9th स्टॉप लॉस हुआ। देन ये आपका 10th ट्रेड बाय में होता है। ओके 10th ट्रेड बाय हुआ, ये ऊपर गया 3% आपके फेवर में गया, फिर आपने ब्रेक इवन पे निकाल दिया और ये आपका 11th ट्रेड हुआ। 11 ट्रेड हुए
11 ट्रेड में से आपने एक ब्रेक इवन पे निकाला 10 स्टॉप लॉसेस इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। अगर आप 3% के स्टॉप लॉसेस भी अगर कंसिडर करते हो तो दिस इज 11 स्टॉप लॉसेस व्हिच इज लॉट। अगेन शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, अगेन बाय। ओके, अब ये जो 11th हुआ, 11th का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर आपका बाय ट्रिगर होता है, ये 12th बाय हुआ, ये बाय का फिर 13th स्टॉप लॉस, वापस ये शॉर्ट हुआ, यहां पर ये आपका 14th ट्रेड है, ये 14th ट्रेड है, ये आपका ट्रेड, ये वाला ट्रेड भी आपका यहां पे नेग्लिजिबल प्रॉफिट में यहां पे आपका बाय हो जाता है, बाय, फिर से इसने यहां पर स्टॉप लॉस नहीं, ये कंटिन्यू आपका 14th, again short here, again a big gap here, again आप जब यहां देखोगे, ओके, आपका फिर से यहां बाय हुआ, ये 15th स्टॉप लॉस, ये 16th ट्रेड, और फिर से ये यहां पर आपका एग्जिट होगा 16th, आपको दिख रहा है यहां पर, ये आपका 17th होगा, ये आपका 18 स्टॉप लॉसेस हो गए। 18 में से एक ब्रेक इवन में था और एक स्लाइटली प्रॉफिट में आया, राइट, सॉरी 18, एंड देन यू हैव दिस अगेन व्हिच इज 19th ट्रेड व्हिच इज ऑन एंड व्हिच इज देयर हियर। 19th ये जो बाय ऑन था, ये वापस आपका बाय ऑन था, फिर से गैप डाउन हुआ, तो ये भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। करीबन 20-22 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद गाइस, ओके, ऑल कैन यू सी दिस हियर, ओके, 19 स्टॉप लॉसेस गाइस, 19-20 स्टॉप लॉसेस ओनली इन दिस फेज। मतलब 20 ट्रेड में से आई कुड सी कि एक टारगेट था, ओके, और वो टारगेट बुक भी नहीं किया, ब्रेक इवन पे आके निकल गए, एंड देन आप दूसरा ट्रेड लेते हो, ओके, जिसमें हल्का सा बेनिफिट, आपकी करीबन 17-18 स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। Number one mistake that is happening when you do it on close, because कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी अगर आपकी क्लोज पे है ना, तो वो स्ट्रैटेजी आपको हमेशा बहुत सारे स्टॉप लॉसेस देगी, बिकॉज 2 दिन के क्लोज नजदीक में हो सकते हैं, राइट, 4 दिन के क्लोज आपस में नजदीक में हो सकते हैं, राइट, बट हाई एंड लो अगर आप यूज करो तो आपके नजदीक में नहीं होंगे। सो कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी आइडियली क्लोजिंग पे नहीं होनी चाहिए। जहां पे अब टॉप बॉटम की बात अगर मैं करूं तो वहां पे एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, ओके। दूसरा मिस्टेक एंड दूसरा प्रॉब्लम दैट आप फेस करते हो, ओके, व्हेन यू डू टॉप एंड बॉटम इज दैट, कैन यू सी दिस, ओके, ये प्राइस यहां शॉर्ट हुआ, ओके, यहां पे कैन यू सी दिस, ये आपका यहां पे बॉटम पे बाय हुआ, यहां पे आपने बॉटम पे शॉर्ट किया, ओके, इसके बाद 1727 से वो 1626 आपके फेवर में इतना जाता है, बट आपका क्योंकि नया टॉप इतना ऊपर है, आप यहां पर एग्जिट करते हो। So understand when you talk about any system for that matter, जब भी आप टॉप एंड बॉटम की बात करोगे, कोई भी चीज ले लो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई और ले लेते हैं बालकृष्ण, अब उसने लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यहां बाय दिया, ओके, तो अगर यहां बाय दिया, वो इतना ऊपर गया, लेकिन वो वापस जहां पर था वहीं पे आ गया। सो अंडरस्टैंड, जरूरी नहीं है कि वो ऊपर जाने के बाद वो रिवर्सल के वक्त वो पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, आपका नया बॉटम बनाएगा और फिर ब्रेक होगा, नॉट नेसेसरी। इट कैन कम डाउन स्ट्रेट, एंड इफ इट कम्स डाउन स्ट्रेट यू मिस आउट ऑन दी, तो पहले तो आपने ये पूरा प्रॉफिट लिया नहीं, फिर आपने वो पूरा प्रॉफिट भी मिस कर दिया, एंड जो आप यहाँ पे शॉर्ट करके शायद जो पैसे बना सकते थे, आप वो भी मिस कर दिए। तो यू मिस ऑन दी प्रॉफिट, यू मिस ऑन दी शॉर्ट मूव एज वेल। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप टॉप बॉटम कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप देख रहे हो, तो अगर आप टॉप एंड बॉटम की तरह अगर उसको देख रहे हो, तो नॉट नेसेसरी इट कैन हैव दिस शार्प up move and the sharp down move as well. Now if you look at this here, okay, आपको पता है यहाँ पर आपके कितने स्टॉप लॉसेस हैं? करीबन 12 से 15 स्टॉप लॉसेस आपके इसके बीच में हुए हैं। उसके अगर आपने ये एक मूव लिया भी है, उसके बाद ये 12-15 स्टॉप लॉसेस, इट्स ऑल गॉन, राइट?
It's all gone. So not necessary, guys. This is what I mean. Not necessary that every trade that you will have the sharp move. So that is the another bigger mistake that happens when you do top bottom. For example, let's say let's draw this here. For example, let's say कोई स्टॉक ऐसे ऊपर गया है, फिर वो स्टॉक ऐसे नीचे आया है, फिर आप यहाँ बाय करते हो, फिर यहाँ बाय करते हो, फिर वो और ऊपर जाता है, फिर वो और ऊपर जाता है, बट आपका जो बॉटम है वो यहाँ है, यहाँ नहीं जाता है, यहाँ बॉटम आता है और यहाँ ब्रेक करता है, विच मीन्स आपने बाय करने के प्राइस बाद आपका प्राइस इधर तक गया, बट बिकॉज वो बॉटम नहीं फॉर्म हुआ तो वो प्राइस नीचे आ गया. Now you cannot have your exit strategy कि वो bottom form होगा तब हम exit करेंगे. Now, absolutely wrong. You could have exited on probably 2-day low or a 3-day low, whatever you want to follow, okay? But something which exits at the top, but leaving few percentage there, but पूरा का पूरा रिवर्सल हो जाना, okay? And ये चीज आप बहुत frequently देखोगे in top and bottom, because that is something which happens, because not necessarily before every fall there will be a reversal, okay? So this is the another mistake that happens, you know. For example, a lot of companies that you go and check, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, आप शॉर्ट किए, आप यहाँ शॉर्ट किए, उसके बाद वो इधर तक आपके फेवर में गया. Can you see this? Okay, ये 774 से वो प्राइस आपकी 710, okay, आपके फेवर में जाता है, बट आप एग्जिट यहाँ करते हो. ओके, आपका टॉप ये है 755 एंड दिस इज 758, आपका यहाँ बाय होता है. तो एक आपने ये जो प्रॉफिट इतना था, ये इसमें से आपने हार्डली 25-30% कैप्चर किया. तो एक आपने ये शॉर्ट के प्रॉफिट्स दे दिए, प्लस अगर आप ये यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे ना, अब यहाँ पे 2-day हाई लो पे भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जिट करते तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर देते, एंड यहाँ पे आप वापस जो बाय करके प्रॉफिट ले पाते थे वो भी प्रॉफिट आप नहीं ले रहे क्योंकि आपका टॉप इतना ऊपर फॉर्म हुआ है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट बाय समथिंग एंड बाय समथिंग जब भी टॉप फॉर्म होगा. नो, वो टॉप कितना भी ऊपर हो सकता है, और जब थोड़ा चॉपी होगा तो टॉप इस तरीके टॉप बॉटम आपकी इतने क्लोज में हो जाएंगे ना कि वो आपको दिन में बाय सेल कंटिन्यूसली देगा. Please understand that as a trader, your job is not to trade day in, day out. Not to trade day in, day out. जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज्यादा पैसा आपका बनेगा. Simple. It is as simple as that. Okay, and दूसरी चीज, okay, please understand, not every trend following strategy has to be, stop and reverse. ओके, बिकॉज जब आप स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेड कर रहे हो तो अगर आपकी लेट्स से यहाँ पे आपका टॉप था, आपकी बाय की यहाँ पे एंट्री हो गई, एंड लेट्स से वो प्राइस यहाँ पे हल्का सा नीचे आता है, आपका यहाँ पे शॉर्ट हुआ एंड फिर से ऊपर गया, तो ये बाय की एंट्री फेक हुई, फिर वापस शॉर्ट फेक हुआ, फिर से जो पिछला बाय था आपने फिर बाय किया. सो ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट नॉट नेसेसरी एवरी ट्रेंड फॉलोइंग हैज टू बी स्टॉप एंड रिवर्स. हाउ अबाउट कि अगर स्टॉक बुलिश है तो तुम सिर्फ बाय करो, शॉर्ट मत करो. शॉर्ट एक सर्टेन लेवल के बाद करो, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के बाद करो, बट डोंट डू इट इमीडिएटली गाइस, डोंट डू इट इमीडिएटली. ओके, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई रियली वांटेड टू सी यू गाइस दैट through this video, and there is lot of other reasons why top bottom does not work. Another very important message that I would like to give here is, especially when you talk about top bottom or any other stock for that matter. Okay, can you see this? यहाँ buy हुआ, यहाँ short किया, you gave away all the profits, okay, and short भी नहीं किए, right? So let's look at few stocks here जहाँ पर another mistake that when you talk about pyramiding, आपको ये लगता है कि मेरा एक टारगेट अचीव हुआ तो मैं फिर से दूसरे टॉप के ऊपर पिरामिड करूंगा, but what if that pyramid बहुत वक्त के बाद आता है? What do you do then? Right? For example, or Mindtree here. Okay, so when you look at this Mindtree here, okay, let's say आपका बाय यहाँ हुआ,
फिर आप 2142 पे बाय हुआ, उसके बाद 2438 पे नेक्स्ट स्टॉप बनता है। कैन यू सी दिस हियर? माइंड ट्री 2142 पे बाय हुआ, फिर आपका अगला टॉप 2438 15% बाद बना है। उसके बाद आप इतना ऊपर पिरामिड करोगे, आपकी कॉस्टिंग कितनी हाई होगी, आपका रिस्क कितना बढ़ गया। अगर आपको पिरामिड ही करना है, आप यहां पिरामिड करते, आप यहां पिरामिड करते, आप यहां पिरामिड करते, यहां पिरामिड करते, आपको वो वापस एक नया टॉप फॉर्म करने की वेट करोगे, तब तक आपकी पिरामिड की एंट्री बहुत लेट हो जाएगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट ऐसे बहुत सारे रीजन है व्हाई इट डज नॉट वर्क आउट। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट, लेट्स से ये हाई है, ये लो है, लेट्स से दिस इज 100 and let's say this is 90 and let's say this is close which is 95. okay, अब मुझे एक बात बताना, ओके, जब हम हाई की बात करते हैं तो हाई पे डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है? सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, which means can I say that sellers are stronger than buyers? Similarly, जब हम लो की बात करते हैं तो यहां पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, which means demand is greater than supply, which means buyers are stronger than sellers. तो अगर प्राइस को ऊपर जाना है, दिस इज द प्राइस जहां से सेलर स्ट्रांग होना शुरू हुए हैं, दिस इज द प्राइस जहां से बायर स्ट्रांग होना शुरू हुए थे। तो अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस को ऊपर जाके ये लेवल क्रॉस करना होगा जहां से सेलर स्ट्रांग होना स्टार्ट हुए थे। So if the price starts going up and it goes above this line here, okay, this shows कि भाई मेरा strength बढ़ा है, okay, और if the price starts going down from here and it goes below this line जहां से buyer strength होना शुरू हुए थे, तो जब buyer ये लाइन के ऊपर जाता है तब buyer strong हुआ बोलोगे। जब सेलर ये लाइन के नीचे जाता है तब हम कहेंगे कि सेलर स्ट्रांग हुआ। जस्ट बिकॉज वो प्रीवियस टॉप के ऊपर गए या प्रीवियस बॉटम के नीचे गए डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ। प्लीज अंडरस्टैंड, every time when you take a buy trade, you have to take when it is showing you strength. You have to go short when it is showing you weakness. अब ऐसे हो सकता है ना कि आपने लेट्स से एक क्लोज यहां है, दूसरा क्लोज यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट्स से आपका फर्स्ट डे पे कैंडल ये यहां है, ओके, लेट्स से सेकेंड डे पे यहां है एंड सेकेंड डे पे यहां है। तो ये कैंडल आपका ये टॉप हो गया, ओके, एंड यू विल, एंड लेट्स से दिस इज दिस बिग कैंडल हियर, ऐसे। अब आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट डे इसके ऊपर गए, आप बाय कर लोगे। बट अंडरस्टैंड, ये शैडो जो आप है ये तो उसने रिजेक्शन बताया ना, तो आइडियली आप यहीं पे बाय कर ले रहे हो, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू डूइंग। अगर आपको बाय करना था तो आपको यहां बाय करना चाहिए, ये क्रॉस होने पे वो स्ट्रेंथ बता रहा है। बाकी ऐसे तो जब वो आपको ऐसे करेगा ना तब तो आपको रुला देगा, क्योंकि इतने स्टॉप लॉसेस होंगे साइड वाइज में, क्योंकि वो क्लोज तो बहुत नजदीक हो सकता है ना, बट हाई लोज इतने नजदीक में नहीं होंगे। So you need to really understand this, everyone. You know, these are the major reasons why the top bottoms does not work. It's like, imagine if somebody is trading top bottom and is trading this phase, will be out of capital. Okay, somebody is trading Kodak Bank will be like out of capital. Somebody is trading Biocon would be out of capital. Somebody is trading Escorts, okay, would be out of capital. So these are the major challenges that, you know, top bottom has it, you know, and these are the reasons why it does not work.
everyone. I hope and I'm sure this video gave you an insight about where does top bottom go wrong, why does it give you so many stop losses, why does all the profits that you made take, it takes away all the profits that you made, or why does it gives you a lot of fake entries, because it is based on the closing price, and 2 days ka closing price can be closer, can be small, and can be closer to each other, and which gives you several entries in a day, giving you a fake entry and a fake exit. Okay, so I hope this has given you a lot of clarity about where exactly are you going wrong, and I hope all the people who have been calling us where are they going wrong, this video should help them to identify where exactly you need to go and improve. This was the same thing when I was trading on top bottom. I was facing it, and I had to take a decision wherein I took a decision of stopping top bottom immediately. And I would really request each one of you guys to think and listen to this video, not once, not twice, but 5 times, and understand, do you really want to continue? And understand the best way of trading markets is trend following. It's just that you need to learn the right way of trading it. And if you really want to know how does my style of trading works, you can log into our website, you can talk to the team, you can check my YouTube channel, other videos on it, and it will help you to understand what exactly and how exactly the trend following strategy needs to be there in order for you to make money. Okay, and as I said, not necessarily trend following has to be stop and reverse. In fact, up, stop and reverse nahi karne chahiye immediately. That's the very, very, very major mistake that you're doing. I hope this helps you to understand where things are going wrong. So thank you so much, everyone. I hope this helps everyone. I wish you all the best. If there could be anything, if I can be of help or I can assist you, we at Asmita Patel Global School of Trading are there to help you out. So thank you so much. Stay blessed.